Uh, Hi there. We're back with another live, and we'll be waiting for like next 5 minutes, and then I think we'll be going on with our new live session. And today we're going to talk about how did I get into Microsoft, and yeah, so how did I get into Microsoft, and I'm going to share you some tips as well as the handbook, which is kind of a reference. All right, and I'm going to share my reference, my sheet, and related stuff. We'll be starting like next 5 minutes, and till then, what you guys can do is you guys can push up your question. You guys can shoot up your questions, and I'll be taking a few questions till we start the session. And okay, Jayesh, I'll try to take it in both Hindi and English, with English to the most for the most content. Yeah, that's about it. And please shoot up your text. Like I can answer a few questions, and then we can start. Yeah. So before that, I'll just share my introduction. Hi guys, I'm Naman Jain. So I just completed my fourth year, and I will be joining Microsoft as a software engineer the next month. So that's about my introduction. And yeah, I've been taking lives and classes. I'm also taking up a DSA live course on coding in Java itself. So that's pretty much about my short introduction and stuff. Uh, and then we'll be moving to the content. So yeah, one question that is coming up is, sir, is it important to have a computer science degree for Microsoft? Not actually. If I talk about myself, I am a electronics and communication engineering student. So as you can see, I'm not a computer science student. I'm an EC student. So I think that answers to your questions. That's just nothing that matters. So meanwhile, what you guys can do is, for those all who are here, you guys can just check my roadmap link for today. That is in the comment section. That is in chat box itself. So you guys can just open up that link to see, and then I'll be telling you how I did it. That's a Microsoft preparation handbook. That's about my preparation, how I did it in March 2020 to crack an intern at Microsoft, and about that time, how did I go? What did I do to get a PPA? So I will be mostly talking about that thing today. And उसके साथ साथ मैंने कुछ कुछ रेफरेंस शेयर कर दिए. So meanwhile, if you have your friends or something that you think जिनको benefit होगा, you guys can share this live link to them as well. And जो भी लोग यहाँ पे please एक like button press कर दो, please like button hit कर दो. Yeah, sure, Sahil. I'm going to do that. Tenzin sharing. Okay, what do you think about machine learning versus web development? So, uh, I when I talk about comparison between these two things, so these two are completely different domains. If I talk about machine learning and web development, both are different, both are altogether different. But you have to think about what interests you. For example, if AI interest you. For example, deep learning and neural networks interest you, and you have you really love to do mathematics and algebra, right? You should go for machine learning because it has complex algorithms like stochastic gradient, linear regression, logistic regressions, and different stuff. So that is the way you can go for machine learning. But if you have interest in seeing a good website, you want to see a good physical layout and something of that sort, so you should go with web development. So these are completely different domains. So there's no comparison between them. So yeah, okay. Let me just check another questions, and till then we can start. All right. Apur, in which year uh, I started programming? So okay, I started programming in 2020 when I was in second year. और मैं उसी की जर्नी तुम लोगों को बताने वाला हूँ. So we'll wait for like 2-3 minutes more. तब तक थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट मी सी. साहिल कह रहा है कि सर प्लीज गिव अ डीएसए प्लान. यार मैं बहुत सारे लाइव में अपना डीएसए प्लान बताता हूँ, तो एक बार मेरे पास लाइव जाके चेक कर लो. अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था ऑन कोडिंग इंडिया रिलेटेड टू डीएसए रोड मैप, तो डीएसए रोड मैप जाके तुम चेकआउट कर सकते हो. ऑलराइट, ओके. So right now I'm in second year of college, want to master DSA, how I manage all things. मैं
इसी के ऊपर आने वाला हूँ। मैं भी सेकेंड ईयर में था, तो तुम शायद रिलेट कर पाओगे। डोंट वरी। हाय रितिका। एंड ओके, सो आई थिंक I'll टेक अप दीज क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। अब थोड़ा कंटेंट पे आ जाते हैं, बिकॉज 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लिए। सो we'll start with the content today. कंटेंट पे आ जाते हैं सीधे। ओके, मीनवाइल मुझे कुछ कुछ लगा कि कुछ है क्वेश्चन व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू आंसर। I'll answer that. All right. So coming on to the content. Okay, let me just share this. Just wait a sec. Okay. चलो, uh, I think you guys can see this screen. All right. So this is the thing जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं. And I think each one of you want to go in your favorite company. It's not just about Microsoft. It's about whatever company that you want to go for. ये मेरा प्रेपरेशन का तरीका है. अब अगर तुम बात करोगे कि सर ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही है या फिर इज दिस माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्ट स्पेसिफिक, सो कंप्लीटली दिस इज नॉट. मैंने यही प्रेपरेशन से अपना डी शॉ का टेस्ट दिया था, अपना आरसीजीएम का टेस्ट दिया था, एंड गोल्डमैन सैक्स का टेस्ट दिया था. तो यही प्रेपरेशन था. दिस वाज माय प्रेपरेशन बिफोर इट. सो दिस इज नॉट टिपिकली रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, तो ये इसको यू गाइस कैन ट्रीट इट एज अ प्रिपरेशन हैंडबुक. या फिर मैंने क्या, मेरा जो पाथ था, हाउ वाज माय पाथ, हाउ डिड आई गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, तो उसके पहले मैंने क्या क्या किया. इट इज कम्प्लीटली दैट. सो सबसे पहली चीज पे बात करते हैं कि जब भी हम एक कंप्यूटर साइंस कंपनी में जाना चाहते हैं, आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं, हम सोचते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में. तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे पहली फंडामेंटल चीज आती है, व्हेन यू टॉक अबाउट इट, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज डीएसए. तो मैंने हाउ डिड आई गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट पे 2 बार वीडियोस डाल रखे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. अगर तुम लोगों ने नहीं देखी, गाइस कैन चेक इट आउट. एंड प्लीज जितने भी लोग लाइव है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज लाइक कर दो, बिकॉज तुम अगर बैठ के देखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. बिकॉज आई जस्ट टेल यू, व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में अगर मैं तुम लोगों को मेरी बात बताऊं, आई स्टार्टेड एज अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट व्हेन आई केम इनटू माय कॉलेज आफ्टर जेई. मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, चंडीगढ़ के अंदर. सो आई जॉइंड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ 2018 के अंदर, और 2018 के अंदर आई एंटर्ड द कॉलेज एज अ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. तो अब तुम लोग देख सकते हो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मैं गया था. आई हैड नो क्लू कि मुझे क्या करना है. तो मैंने प्रोडक्शन, पहली बार मुझे प्रोडक्शन में नहीं रहना था. आई डिडंट वांटेड टू बी इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. सो आई स्टडीड इन माय फर्स्ट सेमेस्टर. आई स्टडीड द कोर. बहुत इजी से सब्जेक्ट्स है. देयर वाज फिजिक्स. फिजिक्स वाज माय वन ऑफ द फेवरेट्स. मैंने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर में आई स्कोर्ड 9.75 सीजीपीए एंड आई जंप्ड टू इलेक्ट्रॉनिक्स. तब जाके मैं सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आया. अब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आया ना, मेरा आई डिड नॉट, मेरा को है ना वो अलाइन नहीं हुआ. मतलब इफ यू टॉक अबाउट, आई हैड जीरो इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. तो सेकंड सेमेस्टर निकला, थर्ड सेमेस्टर निकला, फोर्थ सेमेस्टर में आ गए और मेरी सीजी गिरती गई. सुन रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में 9.75, उसके बाद आती है मेरी 7.8, फिर 7.3. 7.3 जिस सेमेस्टर में आई, उसका नेक्स्ट सेमेस्टर था फोर्थ सेमेस्टर, जब था 2020 का जनवरी चालू हुआ था. एंड 2020 के जनवरी में, एज यू ऑल नो, उस टाइम कोविड बढ़ने लग गया था. तो मार्च 15 को जो था, कोविड की गाइडलाइंस आई थी दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद होने वाला है. आई जस्ट रिमेंबर द डेट, दैट वाज 15th ऑफ मार्च, है ना. 15 मार्च को वो डेट था. और 15 मार्च को जो नोटिस आया था, वो आया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हैं. एंड उस टाइम मैं थोड़ा डरा हुआ था कि यार इंटर्नशिप लेनी है हमने, फिफ्थ सेमेस्टर आने वाला है, कंपनीज आने वाली, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्या होता है, थर्ड ईयर के अंदर कंपनीज आने लग जाती है. तो थर्ड ईयर के अंदर जब कंपनीज आती है ना, मेरे को थोड़ा डर लगने लग गया था यार, अपनी कोर भी अच्छी नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स में आई हैड जीरो इंटरेस्ट, किया क्या जाए. सो आई थॉट ऑफ गिविंग प्रोग्रामिंग अ शॉट. तो 15 मार्च को ना मैं आया घर. आई स्टार्टेड, जिस दिन मैं घर पहुंचा, 14 मार्च को वहां से निकला, 15 मार्च को आई वाज एट होम. 15 मार्च को मैंने जिद करके कोर्स लिया, कोडिंग निंजास का कंपेटिटिव क्या, डीएसए कोर्स. ऑलराइट. तो डीएसए कोर्स जब मैंने लिया, मेरे को क्लू नहीं था. बस मेरे को ये पता था कि अंकुश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं.
और ये मुझे कैसे पता चला था? आई वॉज सिटिंग इन अ फ्रेंड्स रूम, मेरे जो हॉस्टल था, हॉस्टल के एंड वाला रूम था, आई हैड अ फ्रेंड। तो मैं उसके रूम में ना, मेरा जो दोस्त था वो ये कोर्स कर रहा था, ही वॉज डूइंग कोडिंग, और मेरे कॉलेज के काफी ज्यादा बच्चे कोडिंग कर रहे थे उस टाइम, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर चल रहा था, थर्ड ईयर के अंदर हमारी कंपनी जाने वाली थी। तो एक माहौल था पढ़ने का, बिकॉज एवरीवन वांटेड एन इंटर्नशिप। मैंने देखा यार ये कुछ कर रहा है, आई आई सॉ अंकुश सर, और मैंने उस चीज को लेकर ना सिर्फ एक डिसीजन दिया, यार ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, सर इज टीचिंग वेरी गुड, काफी अच्छा सा बैकग्राउंड है, काफी अच्छे से कलर्स है वेबसाइट, मुझे काफी अच्छा लगा, काफी समझ में भी आ रहा है। मैं बैठा एंड आई स्टार्टेड द कोर्स। जैसे ही मैंने कोर्स चालू किया, 15 मार्च को मैं घर पहुंचा, आई बाय दैट कोर्स, आई बॉट दैट कोर्स। मैंने उस दिन अपनी प्रेपरेशन चालू करी, दैट वाज फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड। मार्च 2020 के अंदर मैंने डीएसए प्रेपरेशन चालू करी। तो मेरा डीएसए प्रेपरेशन का जो पहला फेज था, उस दिन शुरू हुआ 15 मार्च को। तो मैंने अब ये जो रोड मैप है, जो ये हैंडबुक है, मैंने उस तरीके से डिवाइड कर रखा है जिस तरीके से मैंने चालू किया। कहाँ से चालू किया? क्योंकि तुम लोगों में से काफी लोग बिगिनर्स होंगे, या फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, इवन थर्ड ईयर में होंगे। तो इट इज रेलिवेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज आई गेस तुम लोग मेरी बात से रिलेट कर पाओगे। तुम बिगिनर होंगे तो तुम्हारे मन में काफी डिलेमा होगा, ठीक है, कि क्या करे, कहाँ से चालू करे। तो ये मेरा स्टेज था, मैंने बस एक हिम्मत जुटा के आई स्टार्टेड द कोर्स एंड आई चोज दिस कोर्स, जो मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखी, दैट वाज सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कोर्स, जहाँ पे हम लोग डीएसए की सी प्लस 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 डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं। अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, और देखो छोटी मतलब नॉर्मल एवरेज कंपनी में हमें जाना नहीं होता, हम लोग का जो मन होता है, वी वांट अ बिग कंपनी, राइट? सो मेरे भी सेम सपने थे तुम लोगों की तरह, कि अच्छी कंपनी में जाना है। आई टेल यू, मेरे व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, मेरे कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट थे, ही वाज पीयूष सर इन फोर्थ ईयर, एंड ही वाज द ओनली स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक की थी। उनको देख के हम लोग इतना वो होते थे ना कि यार, ही इज द गाय। उनका पैकेज होता था 43 लाख, और वो जब आते थे ना, ऐसा लगता था यार, बंदा तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में होके 43 लाख का पैकेज लेके गया बंदा, ही वाज इन माइक्रोसॉफ्ट। उनको देख के ना थोड़ा मोटिवेशन आता था यार, ही इज डूइंग सम। तो वही सेम जज्बा था मेरे अंदर। मार्च के अंदर आई वेंट, मार्च के अंदर आए हम, और मैंने पढ़ना चालू किया। मैंने सोचा कि यार टाइम कम है, एक महीने में कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो मिड मार्च से मैंने अप्रैल के एंड तक आई स्टार्टेड विद माय कोर्स, और मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, फोकस टू कंप्लीट माय कोर्स ऑन गिवन डेडलाइन। काफी लोगों का मेरे से कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर कोर्स के साथ साथ कुछ पढ़ना चाहिए क्या? आई आई सीरियसली से नो, इट्स बेटर टू कंप्लीट योर कोर्स फर्स्ट। पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट होने के बाद ना, उसके बाद हमने प्रिपेयर करना चालू करना है, ठीक है? जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता, तब तक हमारे को सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के ना आइडियाज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम बात करोगे, तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी है नंबर्स की, तो तुम पहले है ना क्या करोगे, अरेज के अंदर इंडेक्सेस के ऊपर नंबर स्टोर करके काउंटिंग कर रहे होंगे। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि यार एक डेटा स्ट्रक्चर है मैप, अनऑर्डर्ड मैप, हैश मैप कुछ चीज होती है जिसके अंदर हम सीधे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइज करेगा, मेमोरी बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टोर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लाख नंबर्स, तो तुम्हें अरे के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 1 लाख साइज का अरे बनाना पड़ेगा, देन उस इंडेक्स पे जाके तुम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एंड सब। बट 1 लाख तुम्हें रेंज दे रखी है, बट 10 नंबर ही आ रहे थे, तुम्हें 1 लाख का 1 लाख साइज का एरे लेना इज अ वेस्ट, तो तुम लोग मैप ले सकते हो। तो ये जो चीजें है ना, ये तुम्हें पता लगेगी जब तुम कोर्स कंप्लीट करोगे। सो माई थिंग तो दिस इज की डू अ कोर्स, एक कोर्स करो जहाँ पे तुम फंडामेंटल्स गेन हो। फंडामेंटल्स गेन होने के बाद तुम पहले वो कोर्स कंप्लीट करो कि जिससे तुम्हें सारी फंडामेंटल नॉलेज हो जाएगी। दिस इज योर फेज वन। ओके, तो ये पहला फेज करना है हमें कंप्लीट, फंडामेंटल नॉलेज गेन करनी है। दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने मिड मार्च से लेके अप्रैल एंड तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था। नाउ व्हाट? अब कोर्स कंप्लीट करना इज नॉट जस्ट इनफ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कम इनटू इंटरव्यूज, दैट कम इनटू ऑनलाइन टेस्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने से कोर्स हो जाता है। आई टेल यू, बीइंग फ्रैंक, ये जो हम कोर्स करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर तुम कोर्स करोगे, दैट इज जस्ट 10 or 20% ऑफ व्हाट यू हैव डन। कोई भी तुम्हारा टारगेट है, वट एवर माइलस्टोन यू आर हैविंग टू गेट इनटू योर कंपनी, अ कोर्स इज जस्ट योर 10 to 20%। अब 10 to 20% के अलावा जो चीज होती है, दैट कम्स अंडर योर प्रैक्टिस। ये जो 20% तो तुमने अभी तक अचीव किया ना, 20 से 80 तक लेके जाना, 90 तक लेके जाना, टू गेट इनटू योर कंपनी, दैट कम्स प्रैक्टिस। अब सेकंड फेज मेरा चालू हो गया था, क्योंकि अब मुझे फंडामेंटल नॉलेज थी। सेकंड फेज, आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्ट व्हाट आई डिड। मैंने इसमें ना कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, दिस नथिंग लाइक मुझे कुछ सेल करना है यहाँ पे, नहीं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, बीइंग फ्रैंक। सो
पहला फेज जैसे मेरा खत्म हुआ, आई एंटर्ड इनटू सेकंड फेज। आई टॉक टू माय सीनियर्स कि यार मैंने अपना कोर्स कर लिया, अब क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, सीनियर्स से इतनी ज्यादा बातचीत थी नहीं, तो मैंने अपने सुपर सीनियर से बात की थी, क्योंकि सीनियर्स ने इतना भी ज्यादा गाइड नहीं किया था, तो क्या करें। वी डिड नॉट हैव मच गाइडेंस अराउंड दिस टॉपिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स से जो स्टूडेंट आईटी के अंदर जाते दे वर अ बिट लेस। तो मेरे पास ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं था कि यार किससे पूछ जाए। तो मैंने एक दो सीनियर से बात करके मैंने पूछा क्या क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो आई टॉक टू समवन हु वाज ऑलरेडी इन माइक्रोसॉफ्ट, जो मेरे कॉलेज के थे, तो उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें बताई, और मैंने उन्हीं के थ्रू कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस करना चालू की। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज, जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था, मैंने कोड स्टूडियो पे जाके क्वेश्चन करना अटेम्प्ट किया था, बिकॉज आई डिड नॉट नो अबाउट एनी प्लेटफॉर्म। मेरे को कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं पता था। इफ यू टॉक अबाउट कोड शेफ, इफ यू टॉक अबाउट लीड कोड, इफ यू टॉक अबाउट इंटरव्यू बिट, ये मेरे को पता ही नहीं था। अब बिना पते मैं क्या कर सकता था? तो मेरे पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था, कोडिंग निंजास। तो कोडिंग निंजास का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कोड स्टूडियो, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। वी हैव मोर देन 650 प्लस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये अब है, मेरे टाइम पे देयर वर जस्ट ओनली क्वेश्चंस। अब कोड स्टूडियो पे इतनी सारी तुम्हें रेफरेंसेस मिल जाएगी, इतने सारे कोड स्निपेट्स, इतने सारे रेफरेंस, इतने सारे तुम्हारे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स के गाइडेड पाथ्स, तुम्हारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, यू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ, मोर देन 2500 प्लस क्वेश्चन, जिनके टेस्ट केसेस भी बहुत अच्छे हैं, टेस्ट केसेस बहुत सही है। काफी बार तुम कई कई प्लेटफॉर्म से जाओगे, आई वोंट टेक द नेम, उनके टेस्ट केसेस आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बेस्ट थिंग अबाउट कोड स्टूडियो की इज कि इनके प्लेटफॉर्म्स के टेस्ट केसेस भी बहुत अच्छे हैं, यूआई यूएक्स बहुत अच्छा है। मेरे को ना एक रंग बिरंगी वेबसाइट ज्यादा पसंद है, इफ टॉक अबाउट इट, क्योंकि एक विदाउट कलर्स की वेबसाइट में ना थोड़ा, तुम्हें समझ आ रहा है ना, बहुत डल सा लगता है। अच्छे कलर्स होना इज अ वेरी बिट इंपॉर्टेंट, जिससे हमारा क्या होता है, माइंड एंगेज रहता है, बिकॉज वो खुश होता है कलर्स को देख के। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो पे ना कुछ बैजेस का होता था कि वीकली विनर्स, डेली विनर्स। The only thing that motivated me to practice was weekly win. मैं वीकली विनर होता था वेबसाइट पे। कभी कोई मेरे से ऊपर चल जाता था, मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, रात को 2 घंटे प्रैक्टिस करके, आई यूज टू कीप अप माई वीकली रैंक। मैं वीकली रैंक 1 पे रहता था, विच मोटिवेटेड मी टू प्रैक्टिस मोर। ठीक है, तो ये वीकली अपने टॉप पे रहना, डेली टॉप पे रहना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर टॉप पे रहना, ये तुम्हें है ना हमेशा मोटिवेट करेगा। एक बार नीचे से स्टार्ट करो प्लीज, स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर लेवल, और प्लीज ऊपर खींचने की कोशिश करो। जब तुम ऊपर वाली लेवल पे जाओगे ना, तुम्हारा कभी मन नहीं करेगा कि तुम नीचे जाओ। एज सुन एज कोई और तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना, तुम्हारा मन करेगा यार इसको ऊपर हटाना है। ठीक है, ये सारी चीजें जब आएगी, जब तुम प्रैक्टिस करना चालू करोगे, तो एक बार प्रैक्टिस करना चालू करोगे। मैंने सबसे पहला स्टार्ट लिया था कोड स्टूडियो पे, कोड स्टूडियो पे प्रैक्टिस करना चालू किया। जैसे ही मैंने कोड स्टूडियो पे प्रैक्टिस करना चालू किया, आई गॉट दिस, और मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि मुझे ही करना था। ठीक है, आई वांटेड टू बी इन द टॉप्स, मेरे को एक अच्छी कंपनी क्रैक करनी चाहिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, और कोई बताता था नहीं, तो एक जगह थी, वहां पे कर लेते थे क्वेश्चन। आई शुड डू मल्टीपल क्वेश्चन, और वहीं से मेरे को पता चला, अच्छा ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन होता है, नए नए तरीके के क्वेश्चन पता चले। आफ्टर दैट, जब कोड स्टूडियो के बाद मैंने प्रैक्टिस करना चालू करी, मैंने कोड स्टूडियो पे अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे। आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट अगर मेरे को याद होंगे तो मैंने 200 से 300 क्वेश्चन कम से कम किए होंगे कोड स्टूडियो पे उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम कोड स्टूडियो का नाम कोड स्टूडियो नहीं होता था, इट वाज जस्ट अ कोडिंग निंजा प्लेटफॉर्म। सेकंड स्टेप दैट आई डिड वाज, मैंने स्टार्ट किया प्रॉब्लम करना लीड कोड पे। मैंने सीनियर से बात करी कहाँ से चालू करें, क्या करें, तो कहते थे माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करनी है ना तो लीड कोड कर लो। मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई कर लेते हैं। आई स्टार्टेड विद प्रैक्टिसिंग ऑन लीड कोड। मैंने लीड कोड ध्यान दिया, मैंने लीड कोड पे चालू किया इजी क्वेश्चन करना। द बेस्ट थिंग अबाउट इजी क्वेश्चन कि इजी क्वेश्चन से तुम्हारी लिखने की हैबिट ना काफी ज्यादा अच्छी होगी। तो मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, इजी, मीडियम, हार्ड, ऐसे धीरे धीरे अपने लेवल्स को प्रोग्रेस करता गया। तो मैंने ये सोचा कि यार एक बार 300-400 क्वेश्चन हो जाने दो, तब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। आई चोज आई मैंने एक मंथ प्रैक्टिस की। मैंने अप्रैल में खत्म किया, मैंने पूरा मे आई गेव माई होल मे टू लीड कोड। क्या लीड कोड करना है, दबा के कुछ नहीं करना है, इसके अलावा लीड कोड करेंगे अपन, दिन के 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते थे, मेरा दिन सफल हो जाता था, बिकॉज दैट वाज गोल। यार एक महीने में 300-400 क्वेश्चन करना है इज वे मोर देन इनफ। तो मैंने ये स्टार्ट किया कि यार लीड कोड चालू करते हैं। लीड कोड में मैंने 300-400 क्वेश्चन किए, और मैंने इजी क्वेश्चन तो पहले निपटाए। इजी क्वेश्चन के बाद ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया यार, अपने से क्वेश्चन होता है। पता है प्रोग्रामिंग करने का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग करते हुए ये मोटिवेशन आ जाए ना, यार अपने से क्वेश्चन हो जाएंगे, सामने क्वेश्चन दे दो अपन कर देंगे। ये जो चीज है ना, ये तुम्हें इजी क्वेश्चन आके देगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन
वैसे इजी होते हैं तो करने में आसानी होती है, और करने में जब आसानी होती है ना मन को खुशी होती है यार हमने क्वेश्चन किया। अगर मैं 5 इजी क्वेश्चन कर लेता था ना यार, आज 5 क्वेश्चन हुए हैं, आई डिड नॉट केयर अबाउट क्या लेवल था, 5 क्वेश्चन हुए हैं, अब लगता है कि चलो इजी क्वेश्चन थे कोई बात नहीं हो जाता। लेकिन 5 क्वेश्चन करने का मतलब ये हो जाता था कि यार आज कुछ किया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, दैट वाज गिवन टू मी बाय इजी क्वेश्चन। तो मैंने इजी क्वेश्चन किया जिससे मेरा कॉन्फिडेंस गेन। जैसे ये हुआ मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट बन गया। अब इसके बाद मैंने मीडियम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मैंने 1 महीने में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए थे। मतलब अगर मैं बात करूंगा मैंने 200 तक इजी किए थे, इफ आई रिमेंबर, 200 इजी, 100 मीडियम, और मतलब 30 40 50 कुछ हार्ड हार्ड क्वेश्चन किए थे, इफ आई रिमेंबर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। दिस इज व्हाट आई डिड ऑन लीड कोड। अब लीड कोड पे इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं सबको बोलता हूँ कि यार कभी भी अपना सोल्यूशन करके आगे मत बढ़ो। मैं कभी भी अपना सोल्यूशन करके आगे मत नहीं जाता था। आगे जाने से पहले आई यूज टू ऑलवेज टेक डिस्कशन सेक्शन एंड एडिटोरियल। अब डिस्कशन सेक्शन में तुम्हें मल्टीपल अप्रोचेस मिल जाएंगी, मल्टीपल अप्रोचेस तुम्हें डिस्कशन सेक्शन में मिलेगी, एंड एडिटोरियल्स में काफी ज्यादा अच्छे यूजर्स होते हैं जो तुम्हारे लिए सोल्यूशन लिख के जाते हैं। लिखे होता है कि ऑर्डर ऑफ वन के अंदर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सी प्लस प्लस सोल्यूशन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी सी प्लस प्लस सोल्यूशन है, जावा सोल्यूशन, कभी कभी पाइथन सोल्यूशन भी मिल जाते हैं जिससे मेरे को काफी ज्यादा आइडिया लग जाता था। तो देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस ऑफ पीपल, तो वहां पे से मैं बेस्ट सोल्यूशन जिसमें मोस्ट वोट्स होते थे, मोस्ट वोट्स के थ्रू मैं बेस्ट सोल्यूशन निकालता था, वो पढ़ता था। तो मेरे को कुछ कुछ यूजर्स पसंद थे, मैंने इनके बारे में हमेशा बताया, हाइपेट एंड लीड 215, ये बहुत अच्छे यूजर्स हैं जो तुम्हें लीड कोड पे मिलेगी। इनके ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम पे तुम्हें एडिटोरियल मिल जाएगी, तो तुम इनके एडिटोरियल देख सकते हो। इन्होंने मुझे काफी ज्यादा फायदा दिया। ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे ये हुआ, अब मेरा 300 400 क्वेश्चन हो गए। मैंने कोड स्टूडियो पे भी 200 300 क्वेश्चन कर लिए थे, तो ऑलमोस्ट मैं ना 600 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन के अप्रॉक्स था। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, लाइक मैं फेक नहीं कर रहा। यू कैन जस्ट चेक माई कोड शेफ अकाउंट, कोड फोर्स अकाउंट, लीड कोड अकाउंट, और मेरे लीड कोड पे 2 अकाउंट थे, तो दोनों पे मैंने कम से कम, एक पे मैंने 300 एक पे मैंने 200, तो आई हैड डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मेरा एक यूएसपी था क्योंकि मैंने क्वेश्चंस काफी ज्यादा करे। उसके बाद अब मैंने ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करना चालू करे। बट अब मुझे क्या क्या लगा कि मैंने ना इंटरव्यू बिट वगैरह चालू किया, मैंने ये सारी चीजें चालू करी। अब मुझे लग रहा था यार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। या लीड कोड पे जब तुम 300 400 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें यार ऑब्वियसली लगेगा यार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इतने भी क्वेश्चन यूनिक नहीं होते कि नहीं लगे। मतलब ऐसा होता था कि मैं हर तीसरा चौथा क्वेश्चन करता था रिपीट हो जाता था, यानी मेरे को नए क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। तो अब मेरे को समझ आ रहा था कि यार नाउ आई हैव टू चेंज माय वे टू प्रैक्टिस, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस चेंज करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, और मैं थोड़ा एक जगह स्टेगनेट हो गया था, मेरी क्या है प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। इसके बाद मैंने सोचा कुछ और किया जाए, थोड़ा अपना लेवल अप स्किल किया जाए। देन मैं गया कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ। मई तक मैंने लीड कोड किया। जून 2020 में स्टार्टेड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। अब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बाद तुम्हारे काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कि भैया कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्यों, इज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नेसेसरी, इज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट। तो मैं तुम्हें इसका सीधा सवाल सीधा आंसर देता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी टू डू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग। लाइक आई हैव लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का सी नहीं छुआ है, स्टिल दे आर इन माइक्रोसॉफ्ट। अब मैंने प्रोग्रामिंग क्यों करी वो अलग क्वेश्चन है। जिन्होंने नहीं की, दे आर ऑल्सो प्लेस्ड इन वेरी गुड कंपनी, इफ यू टॉक अबाउट Amazon, इफ यू टॉक अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, वो भी कंपनीज के अंदर प्लेस्ड है। बट व्हाई आई चोज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रखा है। मीनवाइल जितने लोग भी आए, आई थिंक आई हैव 66 पीपल, प्लीज आई वांट यू गाइस टू लाइक दिस वीडियो। एक लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ लाइक मिलता है, बिकॉज इट एनकरेजेस अस टू मेक न्यू वीडियोस एंड सेशंस, क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। आई एम गोइंग टू टेल माय ऑनेस्ट स्टोरी एंड ये तुम्हें हेल्प ही करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारे है ना कुछ कुछ चीजें खुलेगी कि यार प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, एक प्लेटफॉर्म करना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म करना है, या क्या करना है, तुम्हें ना एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और ये जरूरी नहीं है तुम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करो, ठीक है, यू कैन गो विद एनी प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट एट ऑल सेलिंग एनीथिंग। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ व्हाट इज द आर्ट ऑफ थिंकिंग, हाउ डू यू प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ प्रैक्टिस करना है, किस फ्रीक्वेंसी किस वे में प्रैक्टिस करना है, ये मेरा मोटिव है हेल्प करने का। एंड माय मेन मोटिव इज टू कीप यू गाइस कॉन्फिडेंट, टू कीप यू गाइस मोटिवेटेड, कि यार मैं कुछ अलग नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे ही हो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, दस नो डिफरेंस। हम 2020 में जहाँ पे थे, मैं जहाँ पे था वहां पे शायद तुम लोग अब होंगे, तो कोई बात नहीं है, तुम भी सॉर्टेड हो जाओगे थोड़े टाइम में, सो यू गाइस कैन डू दैट। तो मेरा
प्रॉपर मोटिव ये रहता है, व्हेनेवर आई कम इनटू लाइफ माय होल मोटिव इज दैट तुम मोटिवेटेड रहो। अगर तुम मोटिवेटेड रहोगे आधी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी, अगर तुम कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड हो। तो प्लीज कभी इन सब चीजों से घबराना नहीं, ठीक है। और करते रहना, एंड प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, बिकॉज इट हेल्प्स अस। एंड अगर किसी को तुम लोग को लगता है कि किसी को देखने में बेनिफिट होगा तो प्लीज शेयर भी कर दो। सो लेट मी सी, लेट मी टेक 2 और 3 क्वेश्चंस और उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे आते हैं। 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा। ओके, 1-2 क्वेश्चंस। ऑल राइट, कैन आई गेट DSA using Python coding? Just absolutely yes. I already did machine learning or no. It depends यार। I think you should go with web development because web development का जो ऑरा है, if you talk about web development, I think web development थोड़ा ज़्यादा लोग चाहते हैं। They are less machine learning, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सिर्फ machine learning के लिए ही अपॉइंट हुआ है। So I think you should go for web development. Even I started with machine learning, but मेरे को लगा कि यार थोड़ा रुक जाना चाहिए, तो I stopped myself. What is the basic fundamental to learn? I didn't get a question, Tanya. Basic fundamentals, I mean, agar if you're talking about basic data structures, so they are arrays and all. And if you're looking for a course, I think you should take up a course, because वहां से तुम्हें एक ना पूरा guided path मिल जाएगा। अगर अगर तुम्हें जॉब मिले, if you're getting a good placement, please go for a good placement। बाद में MCA कर लेना, एटलीस्ट तुम्हारे पास थोड़ा वर्क एक्स हो जाएगा। तानिया प्लीज, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो प्लीज इलाबोरेट। ओके, Tenzin Sering, you said Microsoft asked 4 DSA questions, so does it mean we have to give DSA more important? I don't remember that मैंने कभी ऐसा कहा था कि 4 DSA questions, but yeah, DSA is very important because if you talk about Microsoft के interviews की अगर तुम बात करोगे तो थोड़ा linked list के around, trees के around, graphs के around questions होते हैं, so that makes DSA more important. But I'll tell you competitive programming कहाँ पे edge देगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, और वो मैं तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के थ्रू ही बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट या DSA इंपॉर्टेंट है, DSA तो मतलब करना ही है। मैंने वो ही कहा अभी जब मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करी थी, मैंने टॉक्ड अबाउट दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ना, जब मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात की थी, सो आई टोल्ड यू गाइस देयर आर पीपल जो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट में, हु आर इन माइक्रोसॉफ्ट, बट उन्होंने सीपी का सी भी नहीं छुआ है, दे हैव नॉट इवन टच्ड सी of competitive programming. They don't even know about anything. Neither they have given any kind of contest or something, but they are still in Microsoft and Amazon. So it is not necessary to do competitive programming. If you're good enough at programming, that's okay. I mean, uh, yeah, that's it. Uh, Hi, Kushi. And sir, Dangerous Coder is saying, sir, Pakistan and Microsoft headquarter नहीं, क्या करें placement के लिए? Just apply for placements outside. I guess London office है, US office है, Redmond office है. Just go and attend. Very beautiful question. When do you even know that you're prepared for interview? I'll tell you. Anirban, I guess I know you. Okay. So, okay. तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो मैं इंटरव्यूज की बात आगे करने वाला हूँ, क्योंकि अब इंटरव्यूज की तरफ जा रहा हूँ। तो जब मैं इंटरव्यूज की तरफ आऊंगा तो इंटरव्यूज की बात करेंगे। देखो कंप्यूटर साइंस आने वाला है। चलो, कमिंग ऑन टू अगेन, तो अब आ जाते हैं वापस से कॉन्टेस्ट में। प्लीज लाइक कर देना। मैं बार बार कहता रहूंगा, प्लीज हिट लाइक बटन। तो अब कंपेटिटिव प्रोग्राम की बात करते हैं। तो ये देखोगे, अगर तुम जुलाई एंड की बात करोगे, जुलाई एंड में अगस्त से मेरी इंटर्नशिप लग चुकी थी, तो बेसिकली हम उसी तरफ आ रहे हैं, इंटर्नशिप की तरफ। सो जून में जब मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, फर्स्ट थिंग, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करो। It is not necessary to get placement. There are a lot of people जिनकी जॉब गई without doing competitive programming. Now, second thing, competitive programming is nothing different than DSA. Competitive programming is just extension of DSA. तुम कुछ extra data structures, कुछ advanced data structures पढ़ रहे हो. This is nothing different. Competitive programming का मतलब ये होता है कि तुम live contest दे रहे हो, ठीक है, live contest दे रहे हो जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स, इट इज काइंड ऑफ अ मेंटल स्पोर्ट। ये एक मेंटल स्पोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके लाइव कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। वो एट द मोमेंट अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स
बता रहे, वो एट द मोमेंट लॉजिक लगा के कोई नया क्वेश्चन बना रहे, दैट इज कॉम्पिटेटिव। ये हम लोगों ने ना नाम दे रखा जिससे लोगों को डर लगता है। इनिशियली अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर सीपी करनी जरूरी है क्या? मैं कहता हूँ यार सीपी इज नथिंग डिफरेंट। अगर तुम बैठोगे ना एकदम सीपी करने, तो तुम्हें इतना कुछ अलग नहीं लगेगा। वो सिर्फ सेट ऑफ क्वेश्चन है यार। डीएसए की जब तुम प्रैक्टिस करोगे, व्हेन यू विल बी डूइंग डीएसए प्रैक्टिस, तो तुम क्या करोगे? क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना है। तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का ना नाम हाइड करो, एक बार नाम हाइड करो और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के किसी भी पेज पे जाके ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या है। आई अग्री कि यू आर गोइंग टू सी सम डेटा स्ट्रक्चर्स, बट हमारे को उतना लेवल भी जाने का जरूरत नहीं है। आई टेल यू क्या क्या करना है, आते हैं। तो व्हाई डिड आई चूज कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग? व्हाई डिड आई चूज टू डू इट? फर्स्ट थिंग, इट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू लर्न हाउ टू कोड, ठीक है, कैसे लिखना है, हाउ टू कोड, ये सिर्फ इसी में हेल्प नहीं करता, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू लर्न, बट यू ऑल्सो लर्न आर्ट ऑफ थिंकिंग कि कैसे एक नया क्वेश्चन बनाना है। whenever you sit on a bench to give a question, to solve a question, it कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू यू गेट दैट न्यू आर्ट ऑफ थिंकिंग कि यार ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो हमें कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सिखाता है। ठीक है, we use logic based creativity to solve problems from different level, but of different to solve problems of different level आएगा यहाँ पे। ओके, हम ना लॉजिक बेस्ड क्रिएटिविटी, यार ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम, क्या नया तरीका ढूंढ सकते हैं, क्या हमें बाइनरी सर्च लगाना चाहिए या फिर हम बाइनरी सर्च को किसी और तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है, कैसे हम लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स यू लॉजिक बिल्ड, लॉजिक बेस्ड क्रिएटिविटी, जिससे तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। विच इज वाई आई चोज इट। सेकंड रीजन वाई आई चोज इट इज कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू लर्न सम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, कि तुम लोग कोई नया डेटा स्ट्रक्चर लर्न कर रहे होंगे। अब तुम लोग बात करोगे सर इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? सेगमेंट ट्रीज, फैनविक ट्रीज, एडवांस रिकर्जन, स्ट्रिंग एल्गोरिथम जैसे केएमपी हो गई, रॉबिन कार्प हो गई, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। अब मैं तुम्हें ना इससे रिलेटेड किस्सा बताता हूँ। नंबर थ्योरी में ना एक कॉन्सेप्ट आता है यूलर्स क्वेश्चन, है ना? तो फाइंड फैक्टर्स क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन होता है यूलर्स क्वेश्चन, जो नंबर थ्योरी का पार्ट होता है, जहाँ पे हम फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, को प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, और नंबर ऑफ को प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यूलर्स क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और मैं तुम्हें अगर एक चीज बताऊं, दिस केम इन माय माइक्रोसॉफ्ट ओए, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओए था मेरा ऑनलाइन असेसमेंट, उसके अंदर मेरा यूलर्स क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया था, विच इज अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ नंबर थ्योरी। अब नंबर थ्योरी हम डीएसए में तो पढ़ते नहीं है। अब सोचो अगर मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी चालू नहीं करता, मैं नंबर थ्योरी नहीं पढ़ता, तो हो जाना था अपना काम, नहीं होता कोई टेस्ट क्लियर। मैंने तीनों क्वेश्चन किए थे इन माय माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन असेसमेंट विद इन 35 विद इन, इफ आई रिमेंबर, 1 घंटे का टेस्ट आई डिड इन 25-30 मिनट्स। मैंने 25 मिनट्स में कर दिया था अपना टेस्ट। इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, और ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था यूलर्स क्वेश्चन का। अगर मैं नंबर थ्योरी नहीं करता तो आई वुड हैव नॉट क्लियर्ड माय ऑनलाइन असेसमेंट, तो शायद मैं किसी और कंपनी में होता या होता भी नहीं, पॉसिबिलिटी। सो तुम लोग सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल ये सारी चीजें पढ़ना। पता है, फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स ना एक बहुत ज्यादा शिफ्ट आया है। इफ यू टॉक अबाउट ये जो रिफॉर्म्स हुए ना, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर रिफॉर्म्स हुए, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, आई टेल यू। क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे अपने घर पे बैठे रहे हैं कोविड कोविड के टाइम पे। तो कोविड के टाइम बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जिसकी वजह से आजकल जो टेस्ट हो गया, दे हैव बिकम टू अ बिट हार्ड। कई क्वेश्चंस, आई वोंट टेक द नेम्स ऑफ कंपनी, इफ आई रिमेंबर कंपनी, इफ आई रिमेंबर, आई गेस इन्फोसिस ने सेगमेंट ट्रीज पे क्वेश्चन पूछा था। मैंने इन्फोसिस का एक दो क्वेश्चन लिखे थे, दे आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू रेंज सम क्वेरी। उन्होंने रेंज सम के ऊपर क्वेश्चन पूछे, जो पर्टिकुलरली सेगमेंटरी, फैनविक ट्री या बीआईडी ट्रीज का काम है। तो तुम लोग देख सकते हो ये सारी चीजें नॉर्मल तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट में इन्फिल्ट्रेट हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि इन सारी चीजों को मिस करना इज अ वेरी गुड थिंग। देखो, ये लक के ऊपर होता है। जैसे हम लोग किसी कंपनी का टेस्ट देते हैं, मल्टीपल सेट्स आते हैं। जैसे मुझे यूलर्स क्वेश्चन आ गया, मेरे दोस्त को यूलर्स क्वेश्चन नहीं आया, बट हो सकता है ना तुम्हें आ जाए, हो सकता है ना, बिकॉज लक है ये तो व्हाट आई टेल एवरीबॉडी इज कि यार प्लीज, बिफोर sitting for a placement, before sitting for any company, you should at least know things. तो अगर तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग चालू करोगे ना, इट इज नॉट एट ऑल डिफरेंट। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, आई स्टार्टेड विद अ कोर्स। मैंने कोडिंग निंजा से ही कोर्स किया था, बिकॉज अगेन यूट्यूब पे धक्के खाने से ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है यार, कि कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में करना चाहिए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यार अब ऐसा तो है नहीं ना कि तुम लोग पहले
तुम लोग पहले ग्राफ पढ़ लो फिर बाद में रिकर्जन कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता ना। दिस अ पर्टिकुलर सीक्वेंस कि जिसमें हमें करना चाहिए। तो मैंने इसलिए ही कोर्स लिया था, मैंने कोर्स लिया जिससे मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन कर सकूँ, टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ना रैंडमली नहीं पढ़ सकते तुम लोग, रैंडमली प्रैक्टिस करना इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। तो इसलिए आई टुक अप अ कोर्स, पारिक सर ने पढ़ाया था। पारिक सर काफी बार तुम लोगों के लिए लाइव देते हैं। दे वो इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो आई एम श्योर तुम लोग भी तुम लोग भी फॉलो करते हैं पारिक सर। um, काफी टाइम से है इंडस्ट्री के अंदर, सो ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उन्हीं ने ये कोर्स बनाया, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर चुके हैं, फिर टॉक अबाउट, और बहुत अच्छे ट्यूटर मेंटर भी हैं। तो उन्होंने कोर्स पढ़ाया है और मेरे को काफी अच्छा लगा कोर्स। तो मैंने यहाँ से कोर्स किया। अब ये कोर्स करने के बाद आती है बात, वापस से मैंने फोकस किया कि मेरी डेडलाइन से अपना कोई कोर्स खत्म हो। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस अप्रोच अपनाई। सॉरी, द प्रैक्टिस अप्रोच दैट आई chose was is contest based approach। या कॉन्टेस्ट बेस्ड अप्रोच होती है, कॉन्टेस्ट बेस्ड अप्रोचेस कि हम लोग प्रैक्टिस तो करेंगे ही लेकिन कॉन्टेस्ट देखें। वो मैंने नीचे डेली प्रैक्टिस के अंदर सेक्शन डाल के, बट कॉन्टेस्ट बेस्ड अप्रोच कहाँ पे हेल्प करती है? इट हेल्प्स यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन अटेम्प्टिंग अनसीन क्वेश्चंस। जब भी तुम लोग किसी कंपनी में जाओगे, कोई भी टेस्ट होगी, वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है यार लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो। ठीक है, ये टेस्ट के अंदर नहीं आने वाला लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो, या फिर फाइंड द फर्स्ट मिसिंग नंबर। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी बता दो। ये सीन क्वेश्चन नहीं आने कंपनी के अंदर। टेस्ट के अंदर दे आस्क यू, दे मोस्टली आस्क यू अनसीन क्वेश्चन। और हमारी सबसे ज्यादा फटती कब है? हमारी सबसे ज्यादा फटती कब है? जब हम लोग अनसीन क्वेश्चन देखते हैं। अब अनसीन क्वेश्चन को देखने का जो कॉन्फिडेंस है, दैट इज गिवन बाय कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट देता है वो, क्योंकि हम लोग जब रेगुलरली कॉन्टेस्ट दे रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? नए नए क्वेश्चन कर रहे होते हैं, नई नई क्वेश्चन समझ आ रहा है, हम एडिटोरियल देख रहे होते हैं। तो ये चीज कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट हेल्प्स यू टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक और चीज में हेल्प करता है, सिटिंग के अंदर। कभी भी तुम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज सिट। सिटिंग की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जब भी तुम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होंगे तो तुम्हें 1 या 2 घंटे बैठना पड़ेगा, तुम बीच में कहीं उठ नहीं सकते। तो ऑलवेज कॉन्टेस्ट तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हारी सिटिंग में प्रैक्टिस हो, तुम 1-2 घंटे तक एक जगह बैठे रहो, इससे तुम्हें प्रैक्टिस, उससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो। दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट कॉन्टेस्ट। अब मैंने डेली प्रैक्टिस कैसे करी आफ्टर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, ये मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। जून के एंड की, जुलाई के स्टार्टिंग की, थोड़ा जुलाई का जो स्टार्टिंग था, जुलाई के स्टार्टिंग से एंड तक मैंने कैसे प्रैक्टिस करी। आई यूज टू गिव 2 कॉन्टेस्ट। मैं रोज एक सुबह कॉन्टेस्ट देता था, या एक दिन में सुबह 8-10 बजे के करीब, 10 बजे दे देता था, 10 से 12 या फिर 8 से 10। आई यूज टू गिव 1 वर्चुअल कॉन्टेस्ट। अगर किसी दिन शाम को एक लाइव कॉन्टेस्ट होता था, मैं लाइव कॉन्टेस्ट देता था, नहीं तो मैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट देता। 2 कॉन्टेस्ट हमें देने दिन के, ये बस दिस। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो, नए नए क्वेश्चन देखना चाहते हो, और अगर तुम्हें इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने हैं, तो यू कैन अटेम्प्ट प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट में जाके जो भी तुम्हारी करंट रेटिंग है किसी भी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल अगर तुम कोड स्टूडियो पे भी 900 रैंक पे, तो प्लीज ट्राई टू डू 1100 क्वेश्चन, जिससे तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ सको। तो मैंने ये अप्रोच अप्लाई करी टू अपस्किल माई सेल्फ। तो जैसे अगर मैं, मेरी करंट रेटिंग जैसे 1600 चल रही है, माई करंट रेटिंग है 1600, करंटली आई एम एन एक्सपर्ट एट कोड फोर्सेस। ठीक है, माई करंट रेटिंग इज एक्सपर्ट एट कोड फोर्सेस। और मैं शायद गिरने वाली है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से अटेम्प्ट नहीं किया है कोई भी सेट। मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव हूँ कोड फोर्सेस पे। तो आई डोंट नो अब मेरी रेटिंग कहाँ जाएगी। बट हाउ आई अचीव दैट इज कि मैं जिस भी करंट लेवल पे होता था, मैं +200 करके प्रैक्टिस करता था। +200 अगर मेरे को थोड़ा हार्ड लगता था तो +100 कर लेता था। सेम लेवल पे कभी प्रैक्टिस नहीं करनी, वरना तुम अपस्किल नहीं कर पाओगे यार। सेम क्वेश्चन अगर सेम लेवल पे करते जाओगे तो कभी अपस्किल नहीं हो सकते। सो दिस इज व्हाट आई डिड। मैं 2 कॉन्टेस्ट देता था, कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ो, 2 कॉन्टेस्ट दो। वर्चुअल को मैं सिर्फ 1.5 घंटा देता था, क्योंकि वर्चुअल में हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। पता है, लाइव के टाइम हमारे माइंडसेट में थोड़ा प्रेशर होता है यार, लाइव कॉन्टेस्ट से रेटिंग अच्छी करनी है, बट वर्चुअल के टाइम हमारे मन के अंदर ना कोई बोझ नहीं होता यार, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा बेकार रैंक आएगी, लेकिन उससे हमारी ओवरऑल रेटिंग अच्छी नहीं। तो लाइव के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा 2 घंटे का होता है, इसमें हमारे पास थोड़ा प्रेशर होता है, तो ये तो 2 घंटे देना। लेकिन वर्चुअल आई यूज्ड टू गिव ओनली 1.5 आवर। मैं इस 1.5 आवर में पता है क्या करता था, +30 मिनट्स। ये जो 30 मिनट्स होते थे ना, इसके 2 घंटे के 30 मिनट्स, आई यूज्ड टू सी एडिटोरियल्स। तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे ये 2 घंटे ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ कॉन्टेस्ट। वर्चुअल में मैं 1.5 आवर तो कॉन्टेस्ट देता था, 1.5 घंटा अपने कॉन्टेस्ट देना अच्छे से। 30 मिनट्स हमने क्या करना है, एडिटोरियल्स पढ़ने, यानी 2 घंटे देना है वर्चुअल कॉन्टेस्ट को, इससे ज्यादा नहीं देना। लाइव तुम देते हो तो 2 घंटे तुम्हें कॉन्टेस्ट बैठ के देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। तो दिस वॉज माई ओवरऑल
प्रैक्टिस में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल तरीका होता था प्रैक्टिस करने का, और इसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी है। इफ आई टेल यू, मैं तुम्हें ये एक और चीज बताता हूँ कि इसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जूनियर्स को भी हेल्प करी। आई हैव माय जूनियर्स, मेरे ही बैच के जूनियर्स है, मतलब मेरे ही ब्रांच के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही थर्ड ईयर राइट्स है मेरे, जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्न है, गूगल के अंदर इंटर्न है। मैंने उनको ऐसी यही सब चीजें बताई कि ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना। सो दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, ये कॉन्टेस्ट वाला। दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड, यूं ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने करी अपने जून जुलाई के अंदर। अब जून जुलाई के अंदर मैं आ गया, मिड जुलाई आ गया, अगस्त से अपनी इंटर्नशिप आने वाली है। अब क्या करना, कुछ कुछ चीजें बची थी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इन लास्ट 15 डेज मैंने क्या क्या किया, क्योंकि ये सारी चीजें पता है तुम्हें ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज कंप्यूटर साइंस की अगर तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ इनके क्या किए थे, टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई डिड। तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज ओएस डीबीएमएस अच्छे से करना, बिकॉज कुछ ही पूछा जा सकता है। दिस इज माई लास्ट 15 डेज प्रेपरेशन। मैंने लास्ट 15 डेज कैसे किया, आई जस्ट चेक टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से जाके इनके क्वेश्चन और ये सब किए। अलॉन्ग विद दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट, मैंने गौरव सेन की प्लेलिस्ट देखी थी, जिसने मुझे सिस्टम डिजाइन में हेल्प किया। इसके अलावा मैंने एक रेफरेंस डाला कि सीटीसीआई के अंदर, वहां पे भी सिस्टम डिजाइन के कुछ कुछ मल्टीपल क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन थे सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड, मैंने वो किए थे। ये मैंने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स किए थे। अब ये मैंने कहाँ कहाँ से किया था, आई टेल यू। ओएस डीबीएमएस, बिकॉज कोडिंग निंजास का उस टाइम कोर्स नहीं था। आई डिड इट फ्रॉम गेट स्मैशर्स एंड और गेट क्रैकर्स के थ्रू। मैंने ओएस एंड डीबीएमएस पढ़े थे, कुछ कुछ वीडियोस देखे थे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डीबीएमएस के, या फिर ओएस के जो राउंड रॉबिन थ्योरी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो मेन मेन डेडलॉक, सेमाफोर्स, ये जो थे, आई चेक्ड इट फ्रॉम देयर। मैंने गेट स्मैशर्स की प्लेलिस्ट देखी थी। एंड सेम संदीप जैन, इफ आई नहीं, संदीप जैन नहीं, देयर वाज अ टीचर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, और उनका मैंने डीबीएमएस करा था। ठीक है, तो मैंने वहां से डीबीएमएस और ओएस किया था। दिस इज व्हाट आई डिड। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के मैंने सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन किए थे, बिकॉज ये थोड़ा हार्ड टॉपिक था। तो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स के सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन दिए थे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक ये था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें इतना किया था। सिस्टम डिजाइन का चेक गौरव सेन्स प्लेलिस्ट, गौरव सिंह की प्लेलिस्ट देखी थी। इसके अलावा मैंने सीटीसी अप्रोच करी, सीटीसी करी थी। सो दिस वाज ऑल दैट आई डिड इन माय लास्ट 15 डेज, क्योंकि लास्ट 15 डेज में मेरे पास इतना टाइम नहीं था। अब तुम लोग बात करोगे सर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स आपने कब किए, प्रोजेक्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रोजेक्ट्स भी किए थे। मैंने मीन वाइल रोज रात को एक एक घंटा, दो दो एक एक घंटा देके, इनमें आई यूज टू डू वेब डेवलपमेंट। मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था, एंड मैंने न्यूरल नेटवर्क किया था कोर्सेरा से। एंड्रो एनजी का कोर्स था, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। तो मैंने एंड्रो एनजी का कोर्स वहां से किया था। डीप लर्निंग के 5 कोर्सेज थे, मैंने वहां से किए थे। एंड प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किया था। इट वाज अ कोर्स बाय एंजेला यू। मैंने एंजेला यू का कोर्स किया था, विच इज अ वेरी फेमस कोर्स, एंजेला यू का कोर्स था। एंड दिस वाज बाय एंड्रो एनजी। ठीक है, दिस वाज बाय एंड्रू एनजी। ये मैंने कोर्स किए थे। बट इस कोर्स का एक बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत कंपटीशन में एक अच्छा कोर्स है, जो कि कोडिंग निंजास का ही है, वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय कोडिंग निंजास। वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मैंने बाद में देखा था, बड़ा फाउंड आउट कि वो बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स था। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव डन वेब डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम कोडिंग निंजास, व्हिच वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स। ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा है, तुम लोग कहीं पे भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर लाइक कंकोच सर, उनका पढ़ाने का तरीका, तो कोडिंग निंजास वाला कोर्स बहुत अच्छा है। बट आई डिड दिस बिकॉज मेरे को फ्री में एक्सेस मिल गया था मेरे दोस्त के अकाउंट का, इसलिए आई डिड इट, बट देयर वाज नो पर्टिकुलर रीजन टू डू इट। सो कोर्स ऑफ कोडिंग निंजास का कोर्स भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड न्यूरल नेटवर्क्स आई डिड इट। एंड मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, कंप्रेशन सिस्टम यूजिंग हफमैन कोडिंग। तो मैंने हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम के थ्रू कंप्रेशन सिस्टम बनाया था। दीज वर द प्रोजेक्ट्स दैट आई यूज्ड। इसके अलावा जो जो रेफरेंस मैंने यूज किए थे वाइल प्रैक्टिसिंग, वो भी मैं तुम लोगों से शेयर कर देता हूँ। फॉर कोड स्निपेट्स आई यूज cpalgorithms.com। इसके अलावा टॉप कोडर पे ना, इनके ट्रैक बना हुआ है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का। तो मैं क्या करता था, वहां से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का ट्रैक लेता था, जो जो वहाँ पे नाम आते थे उसको गूगल गूगल करके, थोड़ा इधर उधर से रेफरेंस करके, ये देखो ये मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ये तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ चीज सीखनी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी तुम्हें। रिसोर्सेज को ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि यार कोई तुम्हें रिसोर्सेज नहीं बताएगा, और इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन की क्या तुम्हें अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। ठीक है, तो
मैंने यहाँ पे जाता था, टॉपिक पढ़ता था, टॉपिक पढ़ने के बाद मैं देखता था कि क्या मेरे लिए अच्छा है, मेरे को क्या क्या समझ आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। तो मैं यहाँ से रेफरेंस लेता था। इसके अलावा मैंने कुछ कुछ बुक्स पढ़ी है जो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बुक्स है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए आई रेड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग 3 बुक बाय स्टीवन स्कीना। स्टीवन स्कीना की बुक थी, ठीक है। स्टीवन स्कीना इज आईओआई मेडलिस्ट एज वेल एज कोच टू एनयूएस की जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की टीम है, जो एनयूएस की जो सिंगापुर की जो कंट्री की जो टीम है, आईओआई की टीम, उनको ये मैनेज करते हैं, उनके कोच है। तो उनकी एक बुक है स्टीवन स्कीमा और फेलिक्स सलीम की, यही नाम था इनकी। ये बुक है, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, नॉट जस्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वाली चीजें, बट ट्रीज से रिलेटेड, लिंक लिस्ट से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड, तुम्हें काफी काफी अच्छे एल्गोरिथम्स के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हैंडबुक, 200 पेज की बुक है। छोटे छोटे एक एक पेज के अंदर चीजें तुम्हें बता रखी है। तुम ये लिंक जाके खोल सकते हो, तुम्हें लिंक प्रोवाइडेड है इस रोड मैप का, इस पूरे विम्सिकल माइंड मैप का तुम्हें लिंक प्रोवाइडेड है। तुम लोग चेक कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। तो वहां से तुम देख लेना। अलॉन्ग विद दैट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो डीएसए प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैकिंग द कोड इंटरव्यू। ये मैं समझता हूँ ये हर प्रोग्रामर को, हर स्टूडेंट को इंटरव्यू से पहले ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। इतनी ज्यादा अच्छी बुक है, इसके अंदर तुम्हें 189 क्वेश्चंस मिलेंगे, 189 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, उनके मल्टीपल अप्रोचेस मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट, ये तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं सिखाता है, ये तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करवाना, या फिर तुम्हारे बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस है। इसके अलावा तुम्हारे फेसबुक के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, हाउ इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू, गूगल के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, तो पूरे उनके बिहेवियर, उनके पूरे चीजों के बारे में है ना, सब कुछ दे रखा है। तुम चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम्हें ये लिंक शेयर करके दिखाता हूँ, थोड़ी देर ओपन हो जाने दो ये, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। और यहीं से मैंने, इसी बुक से, सीटीसीआई से ही मैंने सिस्टम डिजाइन के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, मैं तुम्हें इसका, ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर दिस एज वेल। ये देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, देखो बिहाइंड द सीन्स करके इसके अंदर इतनी अमेजिंग चीज है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू के बिहाइंड सीन्स बताता है, Amazon के बिहाइंड सीन्स, गूगल, एप्पल, जो भी तुम्हारी फेसबुक, जो भी तुम्हारी फेवरेट कंपनीज है ना, उनके बारे में बताता है कि हाउ आर क्वेश्चन सिलेक्टेड। देखो, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, बिहाइंड द सीन्स, स्पेशल सिचुएशन, उसमें क्या करना है, बिफोर द इंटरव्यू। ये पढ़ के तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, ठीक है। बिहेवियरल क्वेश्चन, ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चन के बारे में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तुम लोगों में से काफी लोग ये क्वेश्चन देखते होंगे, तो जल्दी से खोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये 36 पेज नंबर है। लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो बिहेवियर क्वेश्चन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कैसे स्ट्रक्चर करना है। देखो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, देखो प्रॉपर स्टेप में करंट रोल तुम्हें बताना है कि तुम्हारा करंट रोल क्या है, कॉलेज क्या है, पोस्ट कॉलेज, करंट रोल, आउटसाइड ऑफ वर्क, रैप अप, और ये सारी चीजें, हॉबीज। तो ये तुम्हें ना एक ओवरऑल पैकेज है, किसी भी स्टूडेंट के लिए स्प्रिंकल इन शोज ऑफ योर सक्सेसेस, तुम्हें अपने सक्सेसेस बताने, हाउ डिड यू हेल्प द कम्युनिटी, ठीक है। ये सारी चीजें, ये तुम्हें इतने सारी चीजें बताता है ये पर्टिकुलर बुक। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा अच्छी बुक है। और ये देखो, प्रेपरेशन मैप भी तुम्हें दे रखा है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे स्क्रैच से पढ़ना है। तो 4 वीक्स, डे ऑफ, डे बिफोर, बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत अमेजिंग बुक है। मेरे को तो ये बुक रीड करके बहुत मजा आया था, ठीक है। इसके अलावा जो चीज तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे ये कि फेसबुक इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, फेसबुक इंटरव्यू में क्या क्या होता है, डिजाइन आर्किटेक्चर, क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट्स यूनिक, सेम माइक्रोसॉफ्ट, सेम एप्पल, ये सारी चीजें तुम लोगों को हेल्प करेगा। दिस इज हाउ दिस बुक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। आई थिंक तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है इस बुक से, तो प्लीज ये देख लेना, ठीक है। और कमिंग बैक टू थिंक, वापिस आ जाते हैं उसी पे। ओके, तो ये थी जो मेरे को तुम लोगों को बतानी, दीज आर दी बुक्स दैट आई रेफर टू। एंड इसके साथ तुम लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चीज, जो मैं तुम लोगों के लिए गिव अवे टाइप रख लो,
जब भी तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम इनमें से ऊपर की 80% अचीव कर सकते हो, तब तुम जाके ये मेरी खुद की क्यूरेटेड SD शीट है, ये तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट मी जस्ट शेयर इट एज वेल। मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ कि ये क्या है। ओके, तो ये मैंने खुद ने एक अपनी खुद की एक SD शीट बना रखी है। ठीक है, इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, हाउ टू अप्रोच इट, कैसे सोल्यूशन सोचना है, कितनी देर सोचना है, ये भी बता रखा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबको पता होनी चाहिए, हिंट देखना भी बुरी चीज नहीं होती। देयर इज नथिंग बैड इन सीइंग हिंट्स। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रख लेना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ना ये बेसिकली 21 डेज की प्रैक्टिस बनाई थी मैंने। 21 डेज में कितने क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से करने हैं। तो मेरा ओवरऑल मोटिव ये था कि मैं तुम लोगों को ना मल्टीपल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं, और उसमें से मैंने तुम्हें टारगेट दे रखा है 10 क्वेश्चन की, पहले दिन तुम्हें 10 क्वेश्चन करना है। अगर तुम्हें ये डे वाइज टारगेट लेके नहीं चलना, अगर तुम पूरी शीट कंप्लीट करना चाहते हो, वेल एंड गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर तुम ऐसे 30 डेज प्लान लेके चलो कि यार 30 दिन में कंप्लीट करनी है, तो ये मैंने जो दिन में नंबर ऑफ क्वेश्चन डाल के इनको अचीव कर लो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है दे आर रिलेटेड टू मल्टीपल एल्गोरिदम। ऐसा नहीं है एक एल्गोरिदम पे सारे क्वेश्चन है, ये मल्टीपल डोमेन्स के क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो तुम लोग ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोड फोर्सेस, इंटरव्यू बिट, लीड कोड, कोड स्टूडियो, स्पॉज, मल्टीपल जगहों से मैंने क्या है क्वेश्चन डाल रखे। तो तुम लोग ये सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान दो, और ये तुम लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज लिख रखा है कि सबसे पहले मैथ और नंबर थ्योरी करनी है, फिर अरेज करना है 3 दिन, फिर बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग, recursion, linked list, stack and queues, hashing, greedy, bit manipulation, heap, trees, tries, graphs and dynamic program। मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल रखा है। दिस इज माय SD शीट। इसके अंदर थोड़े कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन है, तो ये तुम्हें काफी ज्यादा ओवरऑल तुम्हें पुश करने वाला है, ओवरऑल तुम्हें हेल्प करने वाली है ये शीट। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज अ गिव अवे। तो तुम लोग ये शीट जाके चेकआउट कर सकते हो, तुम लोग ये शीट खोल के देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड प्लीज लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग एक शीट अटेम्प्ट करें, हाउ आर यू फीलिंग। और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लेवल नहीं है क्वेश्चन का, तुम लोग जाके क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी। इट इज गोइंग टू हेल्प इन सम और द अदर वे। तो ये मेरा तुम लोग को एक गिव अवे है। मैं इसके अंदर धीरे धीरे क्वेश्चन ऐड करता जा रहा हूँ, तो तुम इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन धीरे धीरे अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे को जो क्वेश्चन अच्छा लगता है आई ट्राई टू ऐड। तो ये शीट रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ मैं, तो तुम लोग यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये मेरा टोटल कंटेंट था। हाउ डिड आई गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, हाउ डिड आई प्रिपेयर, और ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन की शीट हो गई। अलॉन्ग विथ मैंने तुम लोग को रिसोर्सेज और सारी चीजें शेयर कर दी है। मैं वापस से उसी पे आ जाता हूँ। लेट मी जस्ट कम बैक टू इट। ओके, या, सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई माइक्रोसॉफ्ट प्रेपरेशन हैंडबुक। सो जल्दी से मैं अब तुम लोग के कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ। लेट मी जस्ट चेक आउट योर क्वेश्चंस, फिर हम थोड़ा क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। या जब नए नए क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं ना, पता है कॉन्टेस्ट देने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम किस लेवल के क्वेश्चन करते हो। तो जैसी इफ आई टॉक अबाउट कोड फोर्सेस, फॉर एग्जांपल कोड फोर्सेस या रेफरेंस, अगर तुम पहले दो क्वेश्चन टाइम पे कर लेते हो, पहले दो या तीन क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू डू फर्स्ट A B C, अगर तुम ये तीनों क्वेश्चन कर पाते हो, यू आर इंटरव्यू रेडी फॉर एनी कंपनी। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो कोड कोर्सेज जल्दी से चालू करो। पहले एक दो तीन क्वेश्चन अगर तुम हर कॉन्टेस्ट में कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर एन इंटरव्यू। Is DSA only criteria into getting to get into big MNCs? Not really. Not just DSA is not only important. You should know development skills. You should have good development skills. You should be a good developer, as well as you should know computer science concepts. जो मैंने बताया, तो अगर तुम्हें ये पता है तो yeah. Shriya says, is CGPA important? Yeah, absolutely. I would have not been shortlisted अगर मेरा CGPA 800 ऊपर नहीं होता। तो इफ यू टॉक अबाउट ऑन कैंपस, तो या CGPA इज इंपॉर्टेंट। इफ यू टॉक अबाउट ऑफ कैंपस, तो CGPA इंपॉर्टेंट नहीं होती। ऑन कैंपस के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं, मैं माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय हूँ और मेरे को 10 बच्चे लेके जाने हैं। हाउ वुड आई, और मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए 20 बच्चे, मैं उनको कैसे शॉर्टलिस्ट करूंगा? मैं उनको CGPA से शॉर्ट कर लूंगा। अच्छा, इनकी CGPA अच्छी है, इनको ले जाओ। वाई? यार इनको प्रोग्रामिंग भी आती है, इनकी CGPA भी अच्छी है, दैट मीन्स मेहनती बच्चे, मैं इनको ले जाऊंगा। दैट इज अ CGPA। ओके, Khushi says how to become weekly winner. Okay, try to do as many questions as you can.
मेरा स्ट्रैटेजी ये था, मैं इजी क्वेश्चन ज्यादा करता था, क्योंकि इजी क्वेश्चन क्या जल्दी जल्दी भी हो जाते थे और टाइम भी नहीं लगता था, स्कोर बढ़ता रहता था, है ना। ऐसा करता था, दो इजी क्वेश्चन एक मीडियम, दो इजी एक मीडियम, फिर एक हार्ड, दो इजी एक मीडियम एक हार्ड, ऐसे। आई थिंक आई हेल्प यू। शिवम पाटिल से डेली प्रैक्टिस करो, या ओके। एंड आई ऑल्सो प्रैक्टिस लॉट फॉर ओएमए, आई गेट ब्लॉग दिमाग में मोस्टली ग्रीडी क्यू एंड प्रीफिक्स क्यू में आई गेट स्टक ऑन ओए, व्हाट शुड आई डू इफ यू थिंक दैट यू स्टक एट ग्रीडी। मैंने तुम्हें एसडी शीट प्रोवाइड किया है, greedy question attempt करो। If you have any kind of problem in any particular thing, shoot up a text to me, मेरे को टेक्स्ट कर लो। यू हैव लिंक्डइन, यू हैव माय नंबर आई गेस, तो प्रैक्टिस कर सकते हो तुम। एंड प्रीफिक्स सम इज जस्ट ये वर्ड से तुम्हें डिफरेंस लगता है, एक बार बैठ के पढ़ लेना तो आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो इट इज अ प्रॉब्लम। डिस्कशन सेक्शन ऑन विच प्लेटफॉर्म, ऑन आई वाज टॉकिंग अबाउट लीड कोड। हाउ अबाउट एल्गोस, उनकी प्रैक्टिस खत्म ही नहीं होती, ओके यार हो जाएगा। कोर्स करना इंपॉर्टेंट है क्या? यस खुशी। यार कहाँ गए क्वेश्चंस? कोर्स सबके कोर्सेज सुन के आई 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 फील आई लैक नॉलेज एंड प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ओके। He hope you doing fine. Thank you. I hope you're doing fine too. You're from commerce background, learning JavaScript. I want a job in Microsoft. Please help me out. So, Juhi, I don't know about if okay, so what you can do is you can just chat, because you're from commerce background. What I suggest you do is, yeah, you'll have to practice a lot more, because when it comes to commerce background, I don't think Microsoft has much people from that background. So you have to, I mean, you have to show that you're a bit different. You're a lot हार्ड वर्किंग। तो ये हार्ड वर्किंग तुम कैसे बताओगे? बाय शोइंग योर यूएसपीज, बाय शोइंग योर सक्सेसेस, बाय शोइंग योर प्रोजेक्ट्स दैट व्हाट यू हैव वर्कड ऑन। तो डीएसए करो बहुत अच्छे से, प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से करो, एंड ट्राई टू डू अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो तुम्हारा बहुत अच्छा यूएसपी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये चीजें तुम लोगों ने करनी। अगर ये चीज तुम करोगे, देन ओनली आई थिंक दैट यू विल हैव अ चांस टू गेट अ जॉब एट माइक्रोसॉफ्ट। यार अपूर, आई थिंक इट टुक अ बिट लॉन्गर टाइम। आई थिंक फ्रंट एंड में इतना टाइम लगता, बट अगेन आई टेल यू इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर तुम्हें इतना टाइम लग रहा है। जस्ट डोंट फील डिमोटिवेटेड, बट ट्राई टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन डूइंग प्रोजेक्ट्स। अगर तुम प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये सीखोगे ना, आई डोंट थिंक इतना टाइम लगना चाहिए, बट अगेन एवरीवन हैज देयर ओन स्पीड। सो कोई बात नहीं लगा है, बट अब अगर इतना टाइम लगा है तो प्लीज वो रिटेन रहना चाहिए। अगर वो रिटेन रह रहा है, देन ओनली इट इज बेनिफिशियल टू यू। क्रिश्चियन, पॉसिबल तो है भी और नहीं भी। आई डोंट हैव अ कॉन्क्रीट आंसर ऑन दिस, बट या थोड़ा सीख लेना। ये फाइनल ईयर में तो प्रैक्टिस करो दबा के, वरद। आई आई थिंक मैंने तुम लोगों को, अगर तुम्हें आता है, इफ यू नो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड यू जस्ट लैकिंग विद द प्रैक्टिस, तो मेरी डीएसए शीट प्रैक्टिस करो और कॉम्पिटिटिव रैमिंग चालू कर दो। दैट इज द बेस्ट आंसर दैट आई कैन गिव टू यू। ओके, कुछ कुछ आंसर कुछ नहीं यार अभिषेक, ट्वेल्थ के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सर आईटी में बेस्ट वेब डेवलपमेंट ही है क्या यार? वेब वेब डेवलपमेंट बेस्ट इसलिए है, पता है क्यों? क्योंकि बाकी डेवलपमेंट चीज, इफ यू टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, यार मैथ्स आ जाएगी बीच में, इसलिए अच्छी है। तो अब देख लो तुम्हें क्या, हाउ मच डज इट हेल्प अस टू हैव अ कोर्स, इसके बिना भी हो जाता है ना। इट मेक्स मी फील दैट आई एम लैकिंग समथिंग व्हेन आई सी अदर्स हैविंग इट, ओके। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन खुशी। आई डोंट थिंक सो तुम्हें ऐसा कुछ सोचना चाहिए। You're not lacking anything. Yeah, the only thing that course helps us is कि you get a guided path. ठीक है, when you talk about learning from random resources, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर पाथ बता देगा। जैसे अब यूट्यूब पे अगर तुम जाके तुम्हें कुछ पढ़ना है, तो तुम्हें ये नहीं पता ना रिकर्जन पहले करना है या ग्राफ पहले करना है। दिस इज द ओनली थिंग जहाँ पे कोर्स हेल्प करता है। तो अगर तुम्हें पाथ पता है, एंड इफ यू नो वेरी गुड रेफरेंस कि यार ये एक ट्रस्टेड रेफरेंस है, तो आई डोंट थिंक सो कोर्स इज अ बिट इम्पोर्टेंट थिंग। बट why I love doing a courses, क्योंकि
कोर्स के थ्रू ना हमारे पे एक बर्डन होता है कि यार ये हमें चीजें डेडलाइन में कंप्लीट करनी है या पैसे भरें। पता है जब हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, हम उसका मैक्सिमम यूज लेना चाहते हैं। सीधी बात है। घर पे खाने की कदर नहीं करते, बट बाहर जब हमें मैकडोनल्ड्स में खाना मिलता है हम उसकी कदर करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी पे एक्स्ट्रा मनी फॉर इट। घर में खाना बनता ही है रोज। सेम नोशन है। ठीक है। हम खुद अगर प्रैक्टिस अच्छे हो जाए करने में तो हम कर लेंगे, बट अगर हम कहीं पे एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करके फिर कुछ चीज खरीदते हैं ना, तो इट इज अ बिट डिफरेंट। पूरा वेब डेव के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का आई हैव नो क्लू, सो आई थिंक आई एम नॉट द करेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू आंसर दैट। यस, मैंने अभी, इफ यू रिमेंबर डेंजरस कोडर, आई अज्यूम अगर डेंजरस नाम है तो तुम अच्छे होगे। तो या नंबर थ्योरी वगैरह एक्स्ट्रा चीजें पूछ लेता है। प्रैक्टिस फॉर अरे क्वेश्चंस, गो टू कोड स्टूडियो, अरे के सेक्शन में जाओ, देयर मल्टीपल क्वेश्चन यू कैन डू इट। यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके लेट मी, एवरीवन सेज इफ यू कैन, हाँ मतलब डीएसए, अगर इफ यू नो डीएसए वेरी अच्छे से, बहुत अच्छे से, इफ यू नो डीएसए, यस यू कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स, बिकॉज वो रिमेनिंग 10% ऑफ द प्रॉब्लम दे आर एब्सोल्युटली वेरी हार्ड, जो हमसे भी नहीं होती। ओके, आई थिंक खुशी इज अ लॉट एक्टिव टुडे। यार एल्गोस करने पड़ते हैं, मतलब वो प्रैक्टिस करने से तुम्हें समझ आ जाएंगे। इफ यू प्रैक्टिस इनफ तुम्हें आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट यार, मतलब आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी बिग इशू, जस्ट प्रैक्टिस इट। मैंने तुम लोग को है ना वो बता दी, cpalgorithms.com है, और एक और मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। इफ यू मैं फॉर मैथ्स क्वेश्चन जो मैंने करी थी, आई टेल यू, दिस इज फॉर स्निपेट्स फॉर मैथ्स। अगर किसी को मैथ्स काफी ज्यादा पसंद है, projectuler.net। तो मैं इसका ना वेबसाइट की कॉपी करता हूँ, projectuler.net। एक सेकंड, यही वेबसाइट है, लेट मी जस्ट चेक इट। यस, यस, projectuler.net, so you guys can just check it out as well। तो मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वेबसाइट पे तुम लोगों को मिल जाएंगे, तो guys can check it। तो मैं ये हटा देता हूँ। ओके, so these are the references that you can use। hey Naman, please answer mine। what uh, uh, पवित्र, roadmap for BSc students is exactly the same जो मैंने बताया है। So very beautiful question. Code chef versus code chef, code forces versus code chef. Which one to choose? So when it comes to beginners, I think code chef is a very good platform because वहाँ पे you guys have long contests, you guys have short contests. So long contests से ना beginners को काफी ज्यादा help होता है, क्योंकि तुम्हें एक दो हफ्ते मिलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। यू हैव 10-11 क्वेश्चन और तुम्हें पूरे एक दो हफ्ते तक प्रैक्टिस करने होते हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज होती है नॉर्मल बिगिनर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये तुम कर सकते हो। तो मैं लॉन्ग कॉन्टेस्ट के लिए तो कोड शेफ करता था, बट व्हेन आई गॉट टू नो क्या शॉर्ट कॉन्टेस्ट में कोड शेफ इज नॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सो आई स्टार्टेड विद कोड फोर्स। एंड कोड फोर्स की क्वेश्चन दे आर बिट गुड क्वेश्चन, तो इसलिए आई थिंक आई वुड से बिगिनर्स के लिए कोड शेफ, फॉर दोज हु आर एट इंटरमीडिएट लेवल आई थिंक कोड फोर्स इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर देम। Yeah, please share the PDF, sir. You guys can check out the comment section. Book name description. Okay, you got books link. Okay, all right. Thanks for the SD sheet. I'll let him. Thank you. Please share। Shivam, I don't have my notes because I didn't use, मतलब मैं बनाता नहीं था। I used to practice only, so I don't have it। But मेरे को अगर कभी भी टाइम मिलता है, I'll surely create। अच्छा, I do have some notes, but वो PDFs के थ्रू है। For you, I just take a, मैं एक DSA लाइव कोर्स भी ले रहा हूँ, एड कोडिंग इज, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स लाइव। तो मैंने उसके कुछ नोट्स बना रखे थे। आई ट्राई टू प्रोवाइड, अगर मेरे को मिलेंगे कुछ तो आई ट्राई टू आस्क द टीम इफ आई कैन शेयर देम और नॉट। Okay. How much minimum time it takes to be decent in DSA? I guess 3-4 months में तुम अच्छे हो जाओगे। So yeah, would you give a very good, very very nice? Tenzin sharing कह रहे हैं, bro, would you give us referral if you have good resume? Answer you absolutely yes। If you'll show me that you have a very good resume, if you'll show me that you
that you are outstanding. If you have a good CGPA, you're outstanding at programming and you've done something good, I'll surely give you referral. I don't have any problem in doing that, like, honestly. श्रेयांश कह रहे हैं हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट व्हाइल प्रैक्टिसिंग डीएसए क्वेश्चन जितना टाइम तुम दे सको जितना अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है दे दो सर will just the competitive programming course enough for getting into my dream company अगर डीएसए आता है या not just competitive programming course बट या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोर्स का प्रैक्टिस भी हमने करनी है तो ये मत कहना कि बस कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कोर्स से मिल जाएगी नहीं सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होता अगेन आई टोल्ड यू कोर्स इज जस्ट द 10 to 20% ऑफ योर होल ड्रीम ऑफ योर होल इंटायर जर्नी तो उसके आगे के जो 70-80% जो रिमेनिंग है ना दैट यू कैन अचीव यूजिंग कॉन्टेस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सो this is the last question that I'm going to take up today and I think one more question. Okay, so I have one more good question with me. So this is the first, this is the last second question. Okay, so how did I stop myself from comparison from other students who started in first year early? ये बहुत ज़्यादा important question है. पता है मैं बताऊंगा. I had very good coders in computer science है ना computer science की जो मेरी बैच था मेरे बैच के computer science students they were extremely good at coding बट पता है क्या हुआ था आई टेल यू मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था आई मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था आई यूज टू रैंट टू अ लॉट ऑफ पीपल आई यूज टू रैंट टू माय फेलो फ्रेंड्स कि यार मेरी रेटिंग नहीं बढ़ रही है मैं अच्छा नहीं कर रहा या किसी और को मेरे से ऊपर जाके देखते हैं ना तब मेरे को बहुत आई टेल यू आई यूज टू हैव दैट पर्टिकुलर एंगर इन माई सेल्फ मेरे को बहुत गुस्सा आता था यार ये कैसे यार हम इतनी देर पढ़ रहे हैं तो मैंने अगर मेरे साथ कोई ऊपर जाता था या फिर कोई और अच्छा करता था मैं पता है 1-2 घंटे एक्स्ट्रा करता था आई यूज टू स्टडी 13-14 आवर्स अ डे आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं 13-14 घंटे कम से कम रोज पढ़ता था बिकॉज आई टेल यू क्योंकि कोविड चल रहा था कंप्लीट लॉकडाउन था कॉलेज नहीं था कॉलेज में क्लासेस नहीं चलती थी घर पे बैठे रहते थे करना क्या था पढ़ता था मैं आई यूज टू 13-14 आवर्स अ डे और मेरे को पता था यार अपन मेहनत कर रहे हैं बन जाएंगे ठीक है तो यही था मेरा चीज मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता जिस दिन तुम मेहनत करके अपनी खुद की रैंक अचीव करोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि यस ये डिफरेंट यस पता है कभी भी अगर तुम प्रैक्टिस करो ना दूसरों की नहीं सोचनी है प्रैक्टिस करते टाइम खुद की सोचनी है यार मैं जितनी प्रैक्टिस करूंगा उतनी योर प्रैक्टिस इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम दैट यू विल टेक टू गेट इनटू अ कंपनी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा एक अच्छी कंपनी में जाने में लिखवा के ले लो एंड आई एम श्योर every single one person who is on the live right now who's with me from the start मैं कह रहा हूँ सबको खुलेआम कि तुम सबकी बहुत अच्छी नौकरियां लगने वाली है यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम कंपनी एब्सोल्युटली यस क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील टू गेट इनटू कंपनी द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस इज दैट हम कंसिस्टेंट नहीं है वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ तो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा तो देख लेना तुम में से सारे लोग अच्छी कंपनी में जाने आ रहे हैं ओके ओके 50 days to go for placement. Is it enough time to attempt your sheet? Yeah, it's absolutely you have enough time. Bro, does your sheet helps us in grow in doing CP also? Yeah, absolutely. It's interview based as well. It's a bit CP based as well because it has hard questions. See, this is not a beginner level sheet. Yeah, beginner level sheet बिल्कुल नहीं है. It is an intermediate level sheet. So it will help you in गोइंग टू सीपी मतलब ये तुम्हें सीपी वाले ट्रांजिशन में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है सीपी का जो बेस लेवल है ना इट इज गोइंग टू सेट you for that but for extreme cp level problems you'll have to go to code forces and other stuff ये थोड़ा sd related topics हैं अगर तुम देखोगे if you're going to check my sheet ये जो topics है they are sde related मतलब जो तुम्हारे डीएसए related question है डीएसए related में थोड़े hard questions है तो it is purely for your interview based but cp में तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी इनसे um, thank you so much. If my C++ playlist course is helping you guys, please, uh, thanks, Rick, thanks, Tenzin. Uh, how much time it will take to three? Well, it depends on you, Johi. It depends on you. I guess Shivam has answered you that.
At a point of time, after looking into those LinkedIn posts of friends getting into great companies like Microsoft, I usually get demotivated. Sir, how to over it? पता है this is the best motivation. पता है मेरे साथ भी ये था. I used to see a lot of people who get into Microsoft, Google, और ये मेरा ड्रीम हुआ करता था. तो इससे है ना डिमोटिवेटेड कभी नहीं होना है. You don't have to get demotivated through such stuff. It's better कि तुम उनसे मोटिवेट हो यार. ये मतलब मैं पता है ये सोचा यार अगर ये बंदा एक अच्छी कंपनी में जा सकता है तो मैं क्यों नहीं. I'm no bad. तो rather than लुकिंग टू दीज थिंग्स कि यार कौन किस कंपनी में जा रहा है. मैं पता है ये कहता था. मैं तुम्हें बताता हूँ. मैं एक स्टोरी बताता हूँ. आई हैड फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में, और मैं ना एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था थर्ड सेमेस्टर. मतलब आई टेल यू व्हेन आई गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, है ना. व्हेन आई गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, a lot of people were shocked. A lot of people were shocked कि यार मैंने कैसे क्रैक कर ली माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज नो वन न्यू अबाउट मी, बिकॉज मैं कोडिंग करता ही नहीं था. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं कोविड के बाद जब घर आया ना मैंने तब कोडिंग चालू करी. तो उससे पहले नो वन न्यू आई यूज्ड टू कोड. तो a lot of people were shocked कि how did I get into Microsoft. बट माइक्रोसॉफ्ट में जाने से पहले मैंने जो चीज किया ना, दैट वाज प्रैक्टिस. मैंने प्रैक्टिस के अलावा कुछ सोचा नहीं. यार जो जिस कंपनी में जा रहे जाने दो. जो जिस कंपनी में जा रहे जाने दो. डोंट थिंक अबाउट अदर्स. डोंट जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. कैन यू डू इट और नॉट. If you're able to practice, if you're going to be consistent, absolutely yes, Sanskruti, you're going to get into yoga. पता है इनसे डिमोटिवेट होना अच्छी बात है, बिकॉज ये डिमोटिवेशन के बाद अगर तुम्हारे अंदर आग आती है ना पढ़ने की, दैट इज द थिंग दैट यू एक्चुअली रिक्वायर एट दिस. तो अगर इन सब चीजों को देख के अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट यार. दैट मींस दैट यू आल्सो वांट टू गो दैट पर्टिकुलर कंपनी. तो इन सब चीजों को लेके डिमोटिवेट हो अच्छी बात है, बट उस डिमोटिवेट को नेगेटिव वे लेके नहीं जाना है. यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. अच्छी कंपनी में जा प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. कंसिस्टेंट रहना है कि अगर अगर सामने वाला देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. ट्राई टू थिंक दिस एज अ मतलब क्वांटिटेटिवली सोचो. पता है कैसे. थिंक अबाउट अगर कोई तुमसे 2 घंटे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है ना दिन का, तो साल में वो तुमसे 700 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं. चलो साल भर छोड़ो. अगर तुम तुम्हारे से कोई 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहा है महीने भर के लिए, प्रैक्टिसिंग 60 आवर्स मोर. 60 आवर्स प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है. 60 आवर्स के अंदर तुम काफी सारी चीजों में मास्टर बन सकते हो. तो ये सोचो सिर्फ 2 घंटे महीने भर में कोई तुमसे कितना आगे निकल सकता है. 60 आवर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो थिंक अबाउट दिस थिंग. ऐसे करके अपना 1 घंटा बढ़ाओ. अगर तुम ये सोचोगे ना, अब इसको उल्टा सोचो कि यार अगर तुम आज 2 घंटे एक्स्ट्रा करोगे ना तो तुम किसी और से 60 घंटे महीने में ज्यादा पढ़ रहे हो. ये तुम्हें कहीं ना कहीं चीज हेल्प करेगी. या प्रशांत, आई ऑल्सो डिड दैट. तो ये मेरा लास्ट थिंग है. या जिस भी कंपनी का टेस्ट होता है ना, आखिरी दिन उस कंपनी के क्वेश्चन देख लो. ये तुम्हें हेल्प करेंगे. और जो तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा मत प्रैक्टिस करो. जो तुम्हें लग रहा है नहीं होगा प्लीज उसका सोल्यूशन देख लो. तो दिस इज व्हाट आई. थैंक्स for staying with me till the end of the course, till the end of the live. And it was super awesome to have you guys on this live, and I hope I helped you a lot. And I think तुम लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा. इट्स नॉट डिफरेंट टू गेट इनटू बिग कंपनीज. इट डिपेंड्स ऑन यू. और इसका पूरा क्रेडिट जाएगा तुमको. पता है कभी मेरे को टैग या फिर किसी और को टैग मत करना कि इन्होंने मेरी हेल्प करी, इसने मेरी हेल्प करी, उसने मेरी हेल्प करी. नो, वी आर जस्ट गाइडिंग यू. तुमने तुम्हारी खुद की हेल्प करी है. यू आर क्रेडिबल फॉर गेटिंग इनटू योर कंपनी. इट्स योर प्रैक्टिस. तो ये सब चीजों के बारे में ध्यान देना. यू आर ओनली क्रेडिबल. एंड I know each and every one of you is going to get into a beautiful company, is going to get into your favorite company, dream company, जो भी तुम्हें मन हो जिसमें जाने का. Uh, all the best guys. Keep practicing and so much. यार सर भैया ऐसा मत बोला करो. Just call me Naman. That's okay. तो ये सब है. एंड प्लीज कीप अप मोटिवेटेड एंड प्लीज शेयर. लाइक बटन प्लीज लाइक कर देना यार, क्योंकि लाइक से ना काफी अच्छा लगता है कि यार लोग सुनते हैं. तो प्लीज हिट लाइक बटन हिट कर दो. एंड कोई भी डाउट हो जस्ट रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन. एंड या यार मोहम्मद साकिब का एक क्वेश्चन है. ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ. तुम्हें अगर बुक्स में कभी जावा लैंग्वेज के कोड्स मिले प्लीज वो तुम उससे आइडिया लेना. उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन होगा. जावा के अंदर उसका कोड का आइडिया होगा. देखो सिर्फ सिंटैक्सेस का डिफरेंस है. तो सी प्लस एस में को कन्वर्ट कर लेना. तो डोंट इसके बारे में इतना मत सोचो. जावा और सी प्लस दे आर ऑलमोस्ट सेम. 15 मिनट के 10-15 दिन के अंदर तुम लोग सिंटैक्स चेंज कर सकते हो. तुम्हें समझ आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. जावा के अंदर पढ़ो तुम्हें समझ आ जाएगा. How can you control our screen time on
स्क्रीन ऑन टाइम भाई अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दे, अपना स्नैपचैट डीएक्टिवेट कर दे, जस्ट यूज व्हाट्सएप। इफ यू हैव गर्लफ्रेंड प्लीज देख लो क्या प्रायोरिटी है, करियर और गर्लफ्रेंड। सो या बीइंग फ्रैंक, सो यही चीज थी, ये मैंने किया था यार, मैंने भी इंस्टाग्राम डिलीट किया था, यूज आई, मैं अभी भी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट यूज नहीं करता, सो दैट मेरा दिन प्रोडक्टिव रहे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड yeah, you can, Apur, you can ask me your doubts on LinkedIn. Thank you, everyone. Thank you so much. Thanks for connecting. And please hit your like button. Please share, like, and subscribe to the channel because we put in a lot of efforts for you guys. And yeah, that's it from my side. Thank you. Bye.